وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقات۔ پاکستان برطانیہ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتا ہے، فواد چودھری کا برطانوی ہائی کمشنر سے تبادلہ خیال۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کے خاتمے کے لیے اقدامات کو مانیٹر کرنا شروع کر دیا۔ موجودہ حکومت نے مہنگائی کے ظلم سے عوام کی صرف چیخیں نکلوائی ہیں، حکمرانوں نے قوم کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف کا بیان۔ وزیر اعظم ہاؤس دھاندلی کا ہیڈ کوارٹر ہے، الیکشن کمیشن کے اعتراضات کے جواب دیے جائیں، مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا بیان۔ حکومت کا 15 سال کے بچوں کی کرونا ویکسینیشن شروع کرنے کا فیصلہ، 15 تا 18 سال کے بچوں کو فائزر کرونا ویکسین لگائی جائے گی۔ کنٹونمنٹ انتخابات، ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر وفاقی وزیر غلام سرور خان کو جرمانہ۔ سپریم کورٹ میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی تعیناتی کے خلاف درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، ایک دہشت گرد ہلاک۔ PIA نے کابل کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم 18 سال بعد ایک روزہ اور T20 سیریز کھیلنے کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، بولے 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 دل بولے شمع، کوئی ڈش آئی لو یو کہے، کوئی مس یو کا سگنل بنے، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، کبھی ممی کا ہے دلال، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولے دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، تکرار بھی یہی پیار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، تکرار بھی یہی پیار بھی، یہی جیت بھی یہی ہار بھی، روز شمع کی ہو محفل، رونق انیویٹیبل، بولی دل کی بولیاں، ذائقے کی زبان ہے شمع، ذائقے کی زبان ہے شمع۔ ٹوائس ہیلتھ فارمولا کے ساتھ شمع کوکنگ آئل اینڈ شمع بناسپتی، بولے دل کی بولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز، میں ہوں سید آصف عباس اور میں ہوں محمد حیدر رضا۔ بولیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری سے پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر کرسٹین ٹرنر نے ملاقات کی، جس میں فواد چودھری نے مجوزہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے مسودہ پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اتفاق رائے پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا مقصد میڈیا کی ترقی اور مؤثر انتظام کے لیے مربوط نقطۂ نظر کو یقینی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ میڈیا انڈسٹری کو ون ونڈو آپریشن فراہم کرنا ہے۔
फवाद चौधरी का कहना था कि आज़ादी इजहार राय की जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ फ़रोग़ और तनकीद का हक़ किसी भी मजहब जमहूरी मुआशरे के लिए नागज़ीर है। फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान बरतानिया के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को ख़ुसूसी अहमियत देता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरका वारियत के ख़ात्मे के लिए इक़दामात को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क में अमन व अमान के क़याम के मामले पर शेख रशीद के नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुख्तलिफ सूबों के दौरे किए। वफाकी वज़ीर दाखिला 2 रोज़ा दौरे पर कराची के लिए रवाना हो गए, जहाँ पर नेशनल एक्शन प्लान के तहत फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लेंगे। वो सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स और दीगर वफाकी महकमे कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान पर ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ का कहना है कि 3 साल में मौजूदा हुकूमत ने महंगाई के जुल्म से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं। अशियाई खुरोनोश की कीमतों में होश रुबा इजाफे की शदीद मजम्मत करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि एक हफ्ते में खाने पीने और रोज़मर्रा अशिया की 24 कीमतों में 23% इजाफा अवाम से जुल्म, ज़्यादती और बदतरीन इस्तेहसाल है। एक हफ्ते में महंगाई की औसत शरह 13.64% होना हुकूमत के मौजूद ना होने का सबूत है। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कहा कि गरीब तबकात के लिए महंगाई की शरह 17.2% होने से मुल्क में बदतरीन गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजली गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 47% और LPG 46% महंगी हुई, जो हुकूमती नाअहली और करप्शन का मुंह बोलता सबूत है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि वज़ीर आज़म हाउस धांधली का हेडक्वार्टर है, इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात के जवाब दिए जाएं। मरियम औरंगजेब ने दीगर पार्टी रहनुमाओं के हमरा इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की धमकी दी गई। इलेक्शन कमीशन को आग लगाने के बयान की मजम्मत करते हैं। इलेक्शन चोरी करने के लिए वोटिंग मशीन का मनसूबा लाया जा रहा है। आर्टिकल 218 के मुताबिक इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। नून लीग ने अवाम को बताया वोटिंग मशीन फ्रॉड है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन पर पैसे लेने का इल्ज़ाम लगाया गया। वफाकी वुज़रा कल इलेक्शन कमीशन पर हमला आवर हुए। कराए के तर्जुमानों ने इलेक्शन कमीशन पर हमला किया। इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग मशीन पर 3 एतराज़ात उठाए। इलेक्शन कमीशन पर हमला करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। वफाकी हुकूमत ने 15 साल उम्र के बच्चों की भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक 15 से 18 साल वालों की वैक्सीनेशन का आगाज़ 13 सितंबर से होगा। इस उम्र के बच्चों को फाइज़र कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने 15 से 18 साल वालों की वैक्सीनेशन की मंजूरी दे दी है। इस उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए बे फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इस वक्त मुल्क भर में 17 से 18 साल अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन जारी है। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की चौथी लहर में मुस्बत केसेस की शरह 1.5 माह में 6% से कम हो गई है। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 5.50% रही, जबकि 23 जुलाई को ये शरह 4.89% थी। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कंटोनमेंट इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान को 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। गुलाम सरवर खान को जारी सरकारी हुक्मनामे में कहा गया है कि इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की शिक नंबर 27 के तहत सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत अवामी ओहदा रखने वाला कोई भी शख्स इंतखाबी उम्मीदवार के जलसे में शिरकत या कंटोनमेंट बोर्ड के किसी भी वार्ड का दौरा नहीं कर सकता। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान ने पाबंदी के बावजूद वाक एंड बोर्ड वार्ड 5 में उम्मीदवार के जलसे में शिरकत की और तकरीर की। वफाकी वज़ीर पर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम साबित हो गया है। गुलाम सरवर खान 30,000 रुपये जुर्माने की रकम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन में जमा कराएं। सुप्रीम कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल बेंच 15 सितंबर बुध को समाअत करेगा। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन के नतीजे में एक दहशतगर्द हिलाक हो गया, जबकि दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हस्सू खेल मीर अली में खुफिया इतलात की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के शदीद तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द हिलाक जबकि इसके 6 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया।
सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। PIA ने काबुल के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA की परवाज पीर 13 सितंबर को सुबह 7:30 पर काबुल रवाना होगी। अफगानिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने PIA को लैंडिंग का इजाजतनामा जारी कर दिया है। PIA ने काबुल फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। PIA काबुल के लिए एयरबस 320 साख्ता तैयारे इस्तेमाल करेगी। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद एक रोज़ा और T20 सीरीज़ खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच गई है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम खुसूसी तैयारे के ज़रिए ढाका से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची, जहां से उन्हें इंतहाई सिक्योरिटी में निजी होटल रवाना कर दिया गया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक न्यूजीलैंड टीम एक रोज़ रूम आइसोलेशन में गुजारेगी। होटल में क़याम के दौरान कीवी खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को कोविड टेस्ट होगा। रिपोर्ट्स मनफी आने की सूरत में उन्हें प्रैक्टिस करने की इजाज़त मिलेगी। दोनों टीमों के माबैन वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ में शामिल तीनों मैचेस 17, 19 और 21 सितंबर को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे, जबकि T20 सीरीज़ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेली जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। मचा दे धूम। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है, और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है, और इसकी खनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर, और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 03000 222 402।